آج ہم بات کریں گے آخر سریر احمد کے بعد اس فیملی کا کیا ہوگا, ان کے بچوں کا کیا ہوگا. بچہ ہوئی آسا مڑا ہوئی سارا آسا ماڑیاں بچیاں دو لویا مگو سنبھال دیا انہیں کو سنبھالتا آسا بچیاں کو مگو بھی دکھتا آسا. آپ خود دیکھو میرے بچے, وہ میرا بیٹا ہے, یہ میری بیٹی ہے, ان کا کیا ہوگا, میرا کیا ہوگا. کمانے والا تو وہی تھا نا, ہمارا سہارا وہی تھا, سب کچھ ختم ہو گیا. انصاف چاہتے ہیں اور اس فیملی کو انصاف دلانا ہے, اور اس فیملی کو انصاف دلانے کا کام جو ہے آپ سب لوگوں کا ہے. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ویڈیو کو بھی زیادہ شیئر کریں گے آپ. بچہ کھل گیا, ہمارا بچہ کھل گیا, ہمارا بچہ کھل گیا. بچہ مجھے پوچھتا ہے ماما کون مر گیا ہے, میرے بابا کو کس نے مار دیا, میں اس کو کیا بولوں, اس کے بابا کو کس نے مار دیا. میرے بچے جب بڑے ہوں گے میں کیا بولوں گی ان کو آپ کے بابا کہاں ہے, وہ مجھ سے پوچھیں گے میرا بابا کہاں چلا گیا. میرا سب کچھ وہی تھا, میرے جینے کا سہارا وہی تھا, سب کچھ ختم ہو گیا. میری تو دنیا ہی ختم کر کے چلا گیا. میری بچی یتیم, میرا بیٹا یتیم ہو گیا, ان کو ابھی باپ کا سہارا چاہیے تھا, وہ چھوٹی عمر میں یتیم ہو گئے. ناظرین بات کریں گے, آپ جانتے ہیں کہ 3 دن پہلے کا حادثہ پیش آتا ہے سریر احمد. میں بات کر رہا ہوں سریر احمد کی. آپ جانتے ہیں کہ سریر احمد جو تھا وہ 2 فیملیز کو چلا رہا تھا, چھوٹے چھوٹے بچے. ساتھ ہی ساتھ ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ اگر اس ٹائم میں ان کے فیملی کے سامنے موجود ہوں, اور یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر ایک کی آنکھوں میں اس ٹائم آنسو ہے. وہ آنسو کیوں ہے؟ کیونکہ ایک لڑکا جو 2 فیملیز کو بھی چلا رہا تھا, ساتھ ہی ساتھ اس سے پہلے کی بات کریں سریر احمد کا بھائی جو آلریڈی پولیس محکمے میں تھا, ہارٹ اٹیک کی وجہ سے جو ہے وہ آن ڈیوٹی اس وقت بھی اس کی موت ہوئی. لیکن آج ہم بات کریں گے آخر سریر احمد کے بعد اس فیملی کا کیا ہوگا, ان کے بچوں کا کیا ہوگا. یہ اس کی وائف ہے, یہ اس کی بھابھی ہے, اور یہ بھی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کو بھی چلا رہا تھا, اس کے گھر کو بھی چلا رہا تھا, اور اس کو بھی چلا رہا تھا. لیکن یہاں یہ سوال بنتا ہے, وہ تو اس دنیا سے چل بسا, کہ ہم سب نے یہ جانا کہ ان کا کیا ہوگا, کہ ہم نے یہ ڈھونڈا, کہ ہم نے کسی نے یہ بات کی کہ ان لوگوں کا کیا ہوگا. جو 2 فیملیز کو چلانے والا سریر احمد, اب اس کے گھر کا کیا ہوگا. میں ان سے ڈائریکٹ بات کرنا چاہوں گا, کیونکہ میں تو زیادہ یہ نہیں بولوں گا, کیونکہ یہاں پہ ہر ایک انسان کی آنکھوں میں نم ہے, ہر ایک انسان رو رہا ہے. یہاں رونا آتا ہے. جب میں یہاں پہنچا مجھے بھی رونا آیا. میرے سامنے جتنے بھی یہاں لوگ ہیں, ہر ایک کی آنکھوں میں آنسو ہیں. وہ آنسو یہی ظاہر کر رہے ہیں کہ آخر کار سریر احمد کی گھر کا کیا ہوگا, ان کے بچوں کا کیا ہوگا. آپ سے جانیں کہ آپ رو رہے ہیں, ہم مان سکتے ہیں کہ بات کہ یہاں تو ہر ایک انسان, آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنسو جو ہے رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں. میں یہاں پہ کہوں تو کہوں کیا, کیونکہ یہاں تو لفظ ہی نہیں نکل رہے ہیں, کیونکہ جو بندہ یہاں پہ, جو شخص یہاں پہ, جو بھی یہاں پہ وہ رو رہے ہیں. آپ سے تھوڑا سا بات کرنا چاہیں گے کہ ماڑا بچہ ہوئی آسا مڑا ہوئی سارا آسا ماڑیاں بچیاں دو لویا مگو سنبھال دیا انہیں کو سنبھالتا آسا بچیاں کو مگو بھی دکھتا آسا مگو پراؤ دے بدلے ہوئی آسا اور سارا کی ایسا 2 فیملیوں کو یہ دکھتا آسا. اس نے 2 بچے, ماڑیاں 2 بچیاں, میں اور مارے آسا 2 کو دونوں فیملیوں کو یہ دکھتا آسا. وہ چلا گیا, مارے کو کچھ بھی نہیں, مارا کوئی سارا نہیں رہا, مارا وہ سارا ہو گیا. آپ کے کتنے بچے ہیں؟ مجھے 2 بچہ نہیں, 2 بیٹیاں ہیں, 2 بیٹیاں. اس کی گھر والی جس کا گھر والا ہے ڈاکڑی, اور اس کے 2 بچے ہیں, ایک بچی ہے مشہور بچی, ایک بچہ ہے. بس ہمارا کوئی سارا نہیں ہے, وہ سارا اٹھ گیا ہے. بس آپ کی بات لاسٹ ٹائم کب ہوئی تھی اس کے ساتھ؟
रात को जिस रात गुजरिया, जिस सुबह 5 बजे गुजरे, उस रात उनको उस बात की। और मैं तो को भाभी जी मैं तो को डॉक्टरों को दसा सा, मैं पूरे टेस्ट करा सा, मैं बीमार हो गई थी असियां। मैं रात को उस बात की, बच्चे के नाल खेड़िया सुन, बच्चे नाल उस बात की, बीवी नाल बात की, सुबह 5 बजे यार सो गया। बस मैं क्या कर सकती हूँ? मैं किसा जिगरा सा, मैं किसा मैं करी लाली आर सा, मैं काके को दिखसा, मैं काके दी तेरी दिखसा, ओ मां को पटाओ, ओ मुझको मारो, मेरा बच्चे को कर सा, मेरा बच्चे को कर। यहाँ पे तो हम ये कह सकते हैं आपको कि सिर्फ यहाँ पे आंसू आ रहे हैं। छोटे बच्चे और साथ ही साथ 2 घरों को चलाने वाला जो श्रीर अहमद है वो इस दुनिया से चल बसा। उसकी वाइफ हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। क्या ही बात करेंगे इनके साथ भी, क्योंकि यहाँ तो आंसू ही हैं। आपसे जानेंगे कि आपसे बात हुई थी लास्ट टाइम उसकी? लास्ट टाइम उसने 8 बजे फ़ोन किया था, अपने बच्चों से बात की थी, आधा घंटा वीडियो कॉल पे इससे भी बात की थी, लड़के से भी बात की थी। सुबह बस जब हम उठे और हमने शोर सुना, बस उसके बाद हमारी ज़िंदगी ख़त्म होगी। हमारी ज़िंदगी उन्हीं के साथ थी, वो सब कुछ थे। हमारे घर में और कोई भी नहीं है, उसके बिना घर ही नहीं है, कोई नहीं चलाने वाला है। मेरी ये बेटी, मेरी ये बच्ची, मेरा वो बेटा है, इनके बारे में सोचो। और मुझे हक चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे बच्चों का इंसाफ चाहिए। वो तो नहीं आ सकता है, लेकिन मुझे इंसाफ दो। उसने क्या किया था? मैंने ट्रेनिंग पे भेजा था अच्छे से, मुझे तो नहीं पता था वो सोया हुआ वापस आएगा। मुझे तो नहीं पता है वो सोया हुआ है था। टीआरपी के लिए नहीं, हम यहाँ पे सिर्फ ये चाहते हैं कि श्रीर अहमद के घर को इंसाफ मिलना चाहिए। जैसे आता था अपनी ड्यूटी दे के चला जाता था। पिछली लास्ट टाइम आया, बड़े भाई साहब की उसको न्याज थी, वो आए शाम को, दूसरे दिन चले गए। और अच्छे से आता था, अच्छे से चला। और जितने भी ऑफिसर मेरे पास पहुँचे उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। वो मेरे दुख में शामिल हुए, मैं उनका शुक्रिया अदा कर। अब वो मेरे बारे में सोचेंगे, मेरे बच्चों के बारे में सोचेंगे। आप खुद देखो, मेरे बच्चे, वो मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, इनका क्या होगा, मेरा क्या होगा? कमाने वाला तो वही था ना, हमारा सहारा वही था। सब कुछ ख़त्म हो गया है, सब कुछ सबों को पहुंचता था, सबके साथ था, सिस्टरों के साथ था, भाई बहनों के साथ था, वो सबों को पहुंचता था। आज उसके बिना सब कुछ ख़त्म हो गया। घर क्या, सब कुछ ख़त्म हो गया। मेरे बच्चों के बारे में सोचो आप। एमएलए साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, वो मेरे पास पहुँचे, मुझे उन्होंने सहारा दिया, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। वो तो नहीं वापस आएगा, लेकिन मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, मेरे बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे बच्चों के बारे में सोचो, इनका क्या आगे होगा, मैं आगे क्या करूँगी? मेरे घर में कोई भी नहीं है। यहाँ पे तो हर एक जो है इस टाइम रो रहे हैं, सब जो है इंसाफ चाहते हैं और इस फैमिली को इंसाफ दिलाना है, और इस फैमिली को इंसाफ दिलाने का काम जो है आप सब लोगों का है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को भी ज़्यादा शेयर करेंगे आप, और हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपको कितने बजे ये पता चल गया कि वहाँ पे कुछ हादसा हुआ है? हमें 5 बजे ये पता चला, कुछ ये नहीं बोला गया कि क्या हुआ है। बाद हमने सोचा आज सर्दी है, हार्ट अटैक मत होगा या कुछ हुआ, क्या मसला है। बाद में जब पता चल रहा मुझे फपेरे भाई ने फ़ोन किया कि इस तरह मसला हो गया। मैंने कहा आज सर्दी है, शायद हार्ट अटैक हो गया होगा, तो इसलिए इसका दूसरा भाई बड़ा था, उसको भी हार्ट अटैक हो गया। कहना चाहता हूँ कि हमारे पास ये 2, मेरी ये भाभी है, वो भी मेरी छोटी भाभी है, इनका कोई सहारा इस वक्त नहीं है। वो इस फैमिली को भी पालता था, उस फैमिली को भी पालता था। अब हमारा ये गवर्नमेंट से ये मुतालबा है कि इनका ख्याल रखें। क्यों? हमारा भाई अगर लड़ते लड़ते मर जाता, उसका हमें कोई दुख नहीं था। साहब का बहुत शुक्रगुजार है, हमारे पास एसएसपी साहब भी आए, हमारे पास सब आए, लेकिन हम ये कहते हैं कि हमें इस फैमिली को इंसाफ मिले, क्योंकि इनका अब कोई सहारा नहीं है। देखो मैं इनका मतलब ये मुझे चचेरी भाभी है, मैं 4 दिन यहाँ आऊँगा, 4 दिन के बाद मैं भी अपने काम से चला जाऊँगा, लेकिन इनका सहारा क्या है? बाद में इनको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन मैं अब गवर्नमेंट से भी यही मुजालम करता हूँ, अपील करता हूँ कि कम से कम इनका थोड़ा सोचें इनके बारे में। 2 फैमिलियाँ हैं, 2 फैमिलियाँ, एक नहीं है 2 हैं। भाभी है, ये इसका भी जो हस्बैंड था वो भी डेथ हो गई। अब वो जो था, अब जो श्रीर अहमद था
वो इन दोनों को फैमिली को पालता था, इनका देखभाल। इनकी एक लड़की की उनकी शादी भी उसी ने कराई, जो बड़ी भाभी स्टोरी हमने जो है जी सुनी भी है कि श्री अहमद दोनों फैमिलीज बिल्कुल दोनों फैमिली को चलाता था। तो बिल्कुल मैं आपको ये कहूँ कि मेरा यही सवाल लेके मैं यहाँ पे आया था कि दो फैमिलीज को कौन चलाएगा। मेरे फादर की डेथ हुई उस टाइम मेरे जो चाचू थे, इन्होंने हम दोनों बहनों पे हाथ रखा, मेरी माँ को गले लगाया, बोला कि मैं हूँ आपका बेटा, मैं हूँ आपका सब कुछ, आप रोना नहीं। देखो हमारे घर में कोई मत है, मर्द औरतें हैं, कौन बात करेगा हमारी वजह से, हमारी तरफ से कौन बोलेगा? कोई बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा। हमें इंसाफ चाहिए। यही चीज़ लेके मैं यहाँ पे आया हूँ कि दोनों को एसआरओ के तहत मिलना चाहिए, क्योंकि अगर हम इससे पहले की बात करें, जो इनका हस्बैंड था वो भी पुलिस महकमे में था, उनको भी हार्ट अटैक से हुआ था, और उसके बाद जो श्री अहमद के साथ हुआ, दोनों फैमिलीज इस टाइम बिल्कुल उनके घर पे कोई कमाने वाला नहीं, कोई मर्द नहीं है। हम भी चाहते हैं कि इस चीज़ को देखा जाए और इन दोनों फैमिलीज़ को रिलीफ दिया जाए, इन दोनों फैमिलीज़ को जो है एसआरओ के तहत जॉब मिलनी चाहिए, क्योंकि इस टाइम हमें इन फैमिलीज़ का सोचना है। यही लेके यहाँ आने का मकसद सिर्फ यही था। अब जो है हम चाहते हैं कि अल्लाह से मांगेंगे कि अल्लाह ताला जो है श्री अहमद को जन्नत फिरदौस अता करे। से भी रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को भी ज़्यादा शेयर करेंगे, और ख़ास तौर पे जो है ये एक छोटा बच्चा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। एक छोटा ये बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं। हम ज़रूर चाहेंगे कि गवर्नमेंट जो है इस चीज़ को देखे कि श्री अहमद जो है अब दुनिया में वापस नहीं आ सकता है, लेकिन कम से कम हमें जो है इनकी फैमिली का सोचना है, इनके बच्चों का सोचना है।